Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. How are you all? Comment in the comment section and let me know आप सब लोग कैसे हैं. How are you all? और जो ठीक नहीं हैं, जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है, वो तो ज़रूर कमेंट करें और बताएं क्या प्रॉब्लम है. I'll try to help you out. So, as you all know, on this channel I share with you all my own notes so that you get an idea how to make short notes which are meaningful and comprehensive as well, जो कि आपको बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा. अगर आप मेरे नोट्स से गाइडेंस लेकर अपने नोट्स बनाते हैं तो इसे लास्ट मोमेंट पे रिवाइज एंड मेमोराइज करना भी बहुत ही आसान हो जाएगा. ऑल्सो अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर नोट्स बनाना चाहते हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे नोट्स बनाएं, sometimes the topic is vast and you don't know what to keep in, what to just leave and how to make notes. So आप comment section में comment करके बताइए. I will help you out on that as well. And so before starting, I would request you all to please like the video and share and subscribe. It will really help you. It will not take much of your time, but it will really be helpful for me and helpful for other aspirants who are lost, जिनको समझ में नहीं आ रहा नोट्स कैसे बनाए या आंसर कैसे लिखें. आपको मेरे नोट से ये भी आइडिया लगेगा कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करें. सो उनको भी हेल्प करेगा. सो प्लीज़ डू लाइक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. टुडेज टॉपिक इज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. जो सीरीज हमने स्टार्ट की है फंडामेंटल राइट्स की, सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू, टेकिंग यू ईच right, one by one, and I'm telling you, letting you know how you can make notes जो छोटा सा भी रहे और प्लस आपके सारे पॉइंट्स को ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड सब टॉपिक कवर भी करें. सो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमारे उसमें 2 आर्टिकल दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. पहला आर्टिकल 29. आर्टिकल 29 इज कल्चरल प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. So protection of interest of minorities. Now that we know who are minorities. Minorities here does not imply only the religious minorities, right? So they are not only religious minorities. Minorities means जो भी minority है, including religious and linguistic minorities. For example, some people from Kerala come and get settled in Uttar Pradesh. Now they will have their own language, they will speak their own language, Malayalam or maybe other language, variation of the language, and then they will have their own culture, own cuisine, their own way of living. So now we can say they are not minority because they are also Hindu. Suppose they are Hindu, those who are settled, they are Hindu, they are not minority. And we can also say they are majority in the Kerala, but see, when they come and settled in Uttar Pradesh, they become minority. They are minority. Now they also have right to protect their culture and language and script. So this right, the protection of interest of minorities, Article 29 says आपको जो माइनॉरिटीज किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में भी अगर आप माइनॉरिटी हो जाते हैं, यू हैव ऑल द राइट टू प्रोटेक्ट योर लैंग्वेज, योर स्क्रिप्ट एंड योर कल्चर, राइट. सो यहीं पे मैंने नोट्स में लिख लिया है. सो इसका मतलब तो यही हुआ ना, दिस इम्प्लाइज दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी. सो एवरीबडी, बिकॉज देयर, एक बार आप कह रहे हैं कि वो यहाँ माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी इन व्हाट सेंस हो गए? माइनॉरिटी इन द लिंग्विस्टिक सेंस हो गए, कल्चरल सेंस में वो माइनॉरिटी हो गए, बट अदरवाइज इन द रिलीजियस सेंस दे आर मेजॉरिटी. सो दिस राइट, आर्टिकल 29 इज अवेलेबल टू बोथ माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी. तो दोनों को अपनी लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने का राइट है, राइट. सो दिस इज द Article 29, first right under the cultural and educational right. Now the second right, Article 30, which is right of minorities to establish and administer educational institutions. So
तो कोई जो भी माइनॉरिटी हैं उनको एक हक होता है कि वो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को establish करें और उसको administer करें. So available to religious and linguistic minorities. So this right is also available to both religious and linguistic minorities. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक religion के लोग ही कर सकते हैं. अगर किसी कोई ऐसी ऐसा population है, section of population है जिसको लग रहा है कि हमारी भाषा खतरे में है, या कुछ लोग उसको बचे हैं बोलने वाले, या उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो वो भी अपनी उस लैंग्वेज के लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकते हैं. तो आर्टिकल 30 भी इट इज़ अवेलेबल टू बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. यहीं पे लिख लिया है. सी दिस इज वेरी क्लियर. दिस इज कंप्लीट नोट नाउ. सो एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या है? पहले तो किसको अवेलेबल है? यहाँ पे पहले पॉइंट में मैंने लिख दिया अवेलेबिलिटी. तो अवेलेबल है दोनों को, रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को. अब करेंगे क्या चीज अवेलेबल है? अवेलेबल है एस्टैब्लिश करना और उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी खुद ही करना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का. और द थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज द स्टेट रोल. अगर कोई माइनॉरिटीज करता है, अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करता है, एडमिनिस्टर करता है, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? तो गवर्नमेंट्स रोल इज स्टेट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय माइनॉरिटी. तो जो स्टेट होता है, जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट होता है, वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है. डिस्क्रिमिनेट इन द सेंस, सपोज अगर कोई रूल आया है विच इज एप्लीकेबल टू ऑल स्कूल्स, राइट, स्कूल्स, कॉलेजेस, वॉट एवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये नहीं बोलेंगे कि नहीं हम तो ये बेनिफिट सबको दे रहे हैं बट आपको नहीं देंगे, बिकॉज ओनली बिकॉज यू आर अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा. नो, government, state cannot discriminate on this basis. So this is very important to remember. So this is the cultural and educational rights. Article 29, Article 30. That's how you can make your net. यहाँ पे complete भी हो गया है. इसमें और कुछ नहीं है जानने को या लिखने को, और इतना छोटा सा है नोट्स. इस तरह बनाएंगे, आपको प्रेजेंटेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी in the mains examination, and it will be easy to remember even for the interview. और the prelims के लिए तो बहुत ही important है, क्योंकि prelims में ऐसे pointers ही वो घुमा के देते हैं. अब इसका जो explanation है ना वो इधर दे देंगे and you will be confused. आपको लगेगा दोनों तो सेम ही चीज़ है. अगर आप इस तरह से नोट बनाएंगे ना, तो आपके जो आपने याद किया है, समझा है, उसके अलावा एक जो इमेज आपको जब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स से कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछेगा ना, तो आपको ये इमेज आपकी आईज में रिफ्लेक्ट करेगी. इट विल रिफ्लेक्ट इन योर ब्रेन. सो आप इसके हिसाब से ही वहाँ आंसर कर लोगे, कंफ्यूज नहीं होगे. सो this is all for today's videos. Now I would request you all again to please like, share and subscribe my channel so that it helps you and me both, and we grow together and you achieve the success. Thank you. Love you all.